Welcome dear students. This lecture is based on AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, a worldwide major pandemic threat. We know that not only India but developed, all countries are suffered by this AIDS. It is a viral disorder caused by HIV. So HIV is actually a retrovirus. It is a retrovirus having single-stranded RNA as a genetic material. You can observe here single-stranded RNA, two copies are there actually, but it is single-stranded RNA, retroviruses, and these retroviruses shows reverse transcription. By their RNA, they can synthesize DNA. That is a reverse process that is called Taminism. Tamin and Baltimore discovered that process of reverse transcription by a special enzyme, reverse transcriptase. So with the help of this enzyme, they can produce DNA from their RNA. It is reverse process of transcription. Reverse transcriptase is the enzyme, and then DNA produces another copies of RNA, and that's how there is a replication of viruses in their host cell, right? And their host cells are T4 lymphocytes. Their host cells are T4 lymphocytes, also called helper T cells. Helper T cells, they can easily infect helper T cells. There are, we can say, immune soldiers in a body, WBCs, and this is the category of WBC, and they target their host cells and they can easily replicate within their host, and they lead to deficiency in immunity of the host, right? So this disease or syndrome is characterized by immunodeficiency. That's how the virus is said to be human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, which belong to retroviridae family as being retrovirus. It cannot produce its RNA directly. It have to produce DNA first, and then another copy of RNA can be obtained in their host cell called T4 lymphocytes, right? So initially we should understand the structure of HIV. That is the important category of virus. Here two strains are there, but basically they belong to this particular content. So it is almost spherical virus having 100 nanometer to 140 nanometer in its diameter. Okay, so you can see here this virus is enveloped by a lipid prominent coat having glycoprotein receptors, glycoprotein 41 and glycoprotein we can say 120. These two receptors are very essential to track their host cells. T4 lymphocytes को वो कैसे ढूंढते हैं? T4 lymphocytes को ढूंढते हैं by their glycoprotein 120 receptors. Okay, बहुत ही important receptors यहाँ पे आपको लिपिड पे देखने को मिलेंगे. It also shows presence of two protein coats, outer protein coat and inner protein coat. Outer protein coat is said to be P17 कैटेगरी का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और inner protein coat P24 कैटेगरी का होता है, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन कोड से डबल प्रोटीन कोड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और इसका जेनेटिक मटेरियल ये है सेंट्रल में आप देख सकते हो 2 कॉपीज. ओके, सेंट्रल एरियाज is facilitated by 2 copies of single stranded RNAs having enzyme as well. तो enzyme भी वो बनाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये जो वायरस है बहुत छोटे हैं और होस्ट के बाहर ये न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन जब कभी ये होस्ट में एंटर हो जाते हैं एनी हाउ, राइट, उसके बाद इनका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है. ये अपना रिप्लिकेशन करते हैं, ये अपना प्रोटीन कोड बनाते हैं, ये अपना RNA को रिप्लिकेट कर पाते हैं इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, राइट? एंड ऑफ कोर्स दोज आर ह्यूमंस. इनका टारगेट क्या होता है? ह्यूमंस. तो यहाँ पे हमें समझना है बहुत सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग यहाँ पे हम देखेंगे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद देखेंगे सिम्टम, टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एज वेल. तो वन बाय वन सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. ओके, सो व्हाट अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? ये जो वायरस आप देख रहे हो, ठीक, ये बहुत छोटा है, ये कहाँ रहता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये हम समझ लेते हैं वन बाय वन. सो हियर इट इज इंक्यूबेशन पीरियड from 6 month to 10 year. 6 मंथ से लेकर 10 ईयर तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है. मतलब पर्सन के बॉडी में वायरस तो होंगे बट सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, मे बी अप टू दैट ड्यूरेशन, अप टू 10 ईयर वी कैन से. लेकिन वो इन्फेक्शन इनहेरिट ट्रांसफर कर सकता है अपने दूसरे इंडिविजुअल को, राइट? मदर अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है, ये इनहेरिटेंस ट्रांसप्लासेंटल कहलाएगा, राइट? नॉट थ्रू जीन्स बट थ्रू प्लासेंटा. और आप देख सकते हो कि इस इंक्यूबेशन में
थोड़ा आपको ज़्यादा ड्यूरेशन दिख रहा है, राइट, और यही यहाँ पे रिस्क है टू 10 years. ओके, ग्रेट प्रॉब्लम्स आर देयर. सो वेर इट इज इन द बॉडी ऑफ होस्ट, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके बॉडी में वायरस कहाँ होंगे? उसके बॉडी में वायरस फ्लूइड्स में होंगे, लाइक ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, वी कैन से ब्रेस्ट मिल्क, राइट, स्वेट, टीयर्स, हर फ्लूइड में होता है इंक्लूडिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. बट इन ब्लड, सीमेन, वेजाइनल सिक्रेशंस ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, CSF में भी. और बाकी जो फ्लूइड्स है बॉडी के, जैसे कि मिल्क है, टीयर्स है, ओके, सलाइवा है, इसमें ये कम क्वांटिटी में होगा, बट होगा ज़रूर, राइट. तो यहाँ से बट वो ट्रांसमिशन के हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट. सिमिलरली जो मॉस्किटो बाइट है, राइट, या फिर आप कह सकते हो कैजुअल कॉन्टैक्ट्स है विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स है, यूजिंग सेम स्विमिंग पूल यूज बाय पेशेंट्स, ओके, उससे ट्रांसमिशन अभी रिकॉर्डेड नहीं है, ओके, और ऐसा कोई ट्रांसमिशन होता भी नहीं है. ऑल दोज आर मिथ्स, मिसकंसेप्शंस, राइट. तो ये ट्रांसमिट होता कैसे है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, राइट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड है, राइट. आप देखिए, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स से सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्डेड है, राइट. अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, वजाइनल सेक्स, वी कैन से एनल सेक्स, या फिर ओरल सेक्स, इन सब से रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकती है. लेकिन ये अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो आप देख रहे हो, ये मेजर लीडिंग कॉज है, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ HIV. नंबर 2, अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स. अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो ये अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, नीडल है, सिरिंज, IV बॉटल्स वगैरह, इनसे भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है. इवन रेजर्स जो होते हैं बार्बर शॉपिंग में, ठीक है, वहाँ से भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है. जहाँ भी ब्लड से कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पे HIV ट्रांसमिशन के चांसेस बन जाएंगे. यहाँ पे आप थर्ड पॉसिबिलिटी ले सकते हो. इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखिए, मदर जो इन्फेक्टेड है, ऐसी इन्फेक्टेड मदर ये अपने बच्चों को HIV ट्रांसफर कर सकती है, आइदर थ्रू प्लासेंटा, ट्रांसप्लासेंटल, या फिर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. ऐसा भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकता है. देन अगर किसी का ऑर्गन्स कुछ इन्फेक्टेड है और वो इन्फेक्टेड पर्सन के ऑर्गन अगर डोनेट किए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं किसी नॉर्मल पर्सन को, तो उसको साथ में HIV गिफ्ट मिल सकता है यहाँ, ओके, रिस्क यहाँ भी है. इसी तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अगर किया जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो वहाँ पे भी रिस्क बना रह सकता है. तो अगर ये चीज़ें आप छोड़ दो तो इसके अलावा सारे मिथ होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, उससे HIV ट्रांसफर नहीं होगा, ओके. इन्हीं चीज़ों से ट्रांसफर हो सकता है HIV. ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख लिया. अब हम देखते हैं सिम्टम्स. अगर मान लीजिए HIV बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो किस टाइप के सिम्टम्स दिखाएगा, इसको समझ लेते हैं वन बाय वन. सो सिम्टम्स इंक्लूड 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस. सिम्टम्स में देख सकते हो आप 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे. नंबर 1 जो होगी एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज होगी. एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज, तो एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि फीवर, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत इम्यूनो डिफिशियंसी. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन को अनईजी फील होगा, राइट, उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, और साथ में थोड़ा बहुत लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगा, राइट. बॉडी के अंदर कुछ एलर्जिक सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं. तो ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स होंगे जो किसी और डिसीज में हो सकते हैं, राइट. लेकिन इससे कुछ कंफर्म कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. फिर दूसरा जो स्टेज होता है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज. इस स्टेज में भी कुछ खास सिम्टम्स होते नहीं है. इट इज अ सिम्टमलेस स्टेज एक्चुअली, ठीक है, ये कुछ देर चलेगा. लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेज आएगा वो बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा, कॉल्ड एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. तो ये जो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसमें इम्यूनो डिफिशियंसी देखने को मिलेगी. यहाँ पे वेट 10% से ज़्यादा रिड्यूस होने लग जाएगा, 10% से ज़्यादा, मेजर 3, ओके. इसी के साथ यहाँ पे फीवर भी हो सकता है, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यहाँ देखने को मिलेंगे. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन द सेंस जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, सारे सराउंडिंग इन्फेक्शंस इसको हो जाएंगे क्योंकि इसके पास इम्यून पावर थोड़ा कम है, ओके, इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन है, तो इसको यहाँ पे टाइफॉइड, निमोनिया, ठीक है, या फिर इसी टाइप के सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इसको हो सकते हैं, और उसी से इसका डेथ भी पॉसिबल है. देन एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स.
ये थोड़ा क्रिटिकल है। एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। पर्सन का रिस्पॉन्सिवनेस जो है मेडिकेशंस को वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं देगा और इसका डेथ यहाँ पे श्योर हो जाएगा, राइट। लेकिन एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स में इसको कैपोसिस सार्कोमा कैंसर भी देखने को मिल सकता है और इसका न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस यहीं पे हाईलाइट होगा, राइट। तो इन स्टेजेस में से ये थर्ड फोर्थ स्टेजेस थोड़े प्रोमिनेंट है और ये इम्यूनोडिफिशियंसी से कैरेक्टराइज्ड है। आप देख सकते हो पर्सन बहुत ही वीक और बेड, आप देख सकते हो बेड रेस्ट ही उसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन रह जाएगा, ओके। इसीलिए अगर उसको बचाना है तो इमीडिएट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन इंक्यूबेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो HIV पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेस्टिंग ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है, राइट। यानी अगर हम पीरियोडिक टेस्टिंग करा लेते हैं खुद की या फिर रिलेटिव्स की या सभी अवेयरनेस के तौर पे, तो ये हमें बेनिफिट दे सकता है। टेस्ट यहाँ पे 2 होते हैं। पहला टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, इसलिए टेस्ट 2 बार किया जाता है जनरली, ओके। और अगर दोनों बार पॉजिटिव आए तो फिर कंफर्म माना जा सकता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट भी है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट और WBT, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, प्रोटीन ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन में अगर HIV है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेस किया जाएगा और यहाँ पे इधर भले आ सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते। इसके अलावा कुछ डिजिटल टेस्ट भी अवेलेबल है जैसे कि ओराश्योर वगैरह, ठीक है। इनर चिक सैंपल लिया जाता है, उसमें सलाइवा या फिर जो भी कंटेंट है सेल्स है, ओके। अगर उसमें HIV डिटेक्ट होता है तो पेशेंट को पॉजिटिव कहा जा सकता है, लेकिन वो इतना बिलीवेबल टेस्ट नहीं है, ठीक है, डिजिटल ओराश्योर टेस्ट। लेकिन ये टेस्ट कन्फर्मेटरी है, WBT वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इलाइजा भी एक अच्छा टेस्ट है लेकिन 2 बार करना पड़ेगा। फिर इसमें कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या? तो ट्रीटमेंट के तौर पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये थेरेपी इसमें यूज की जा सकती है। हार्ट थेरेपी यानी जो हमने आपको बताया था कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में कुछ खास ड्रग हम यूज कर सकते हैं जैसे कि एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, जिडोवुडिन, राइबोवैरिन, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन टायर्स इंजेक्शन वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ये हम वायरस का रिप्लिकेशन रोकने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। वी हैव टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बट वी आर ट्राइंग इन न्यू रिसर्च न्यू ऑप्शंस टू स्टॉप दैट वायरस, टू ट्रेस दैट वायरस एंड टू प्रिवेंट दैट म्यूटेशन, ओके। तो उसके जो म्यूटेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम अभी तक उसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बना पाए, ओके। तो वो चीज़ हमें समझनी है और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इस पे हम वैक्सीन्स बना सकते हैं और अंडर रिसर्च ये प्रोग्राम चल रहे हैं अभी वर्ल्ड वाइड, ओके। तो आप देखिए कि पहला जो पेशेंट हमें मिला था 1981 में इन USA जब अफ्रीकन माइग्रेंट्स थे, आज भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स तो अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है। और आज तो ये पेंडेमिक डिजीज़ है, हर जगह इसके पेशेंट्स है, बट इंडिया में पहला पेशेंट हमें 1986 में मिला था इन तमिलनाडु, ओके। लेकिन उसके बाद तो जैसे उसकी बाढ़ आ गई है इंडिया में, राइट, आप देख सकते हो ये बल्क में पेशेंट्स मिलने लगे। सो नेक्स्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, NACP, ठीक है। हमने 1987 में स्टार्ट किया और अभी तक वो प्रोसीजर कंटिन्यू है। और आप जानते हो 1 दिसंबर ये होता है वर्ल्ड एड्स डे फॉर अवेयरनेस, नॉट फॉर सेलिब्रेशन, ओके। तो हम अवेयरनेस करेंगे, कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेशन चाहिए, ओके, मास लेवल पे पार्टिसिपेशन चाहिए। अवेयरनेस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर इट्स बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट ट्रीटमेंट, ओके। भले ही ट्रीटमेंट थोड़ा डिस्कस हम कर रहे हैं लेकिन इनिशियल लेवल पे है, 4th स्टेज में हम उसको बचा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हम सिंपली उसका लाइफ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या डेथ थोड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन उसका डेथ तो श्योर है ना। इसीलिए हमें चाहिए वैक्सीन, ओके। इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना ये वर्ल्ड प्रायोरिटी है। आप देख सकते हो सारे रिसर्च लेबोरेटरीज इसमें हिस्सा लेते हैं और ये रिसर्च प्रोग्राम्स ऑनगोइंग है, राइट। फ्यूचर में हमें डेफिनेटली वैक्सीन मिलेगा बट अभी तक तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ मच बेटर हियर दैन क्योर, क्योंकि क्योर इतना परफेक्ट है नहीं या है ही नहीं ऐसा आप कह सकते हो। तो इस केस में आप देखिए
हमने एक और स्टेप आगे बढ़ के इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया और उसके लिए एक फंड अलॉट किया, ठीक है। उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स हम लेते हैं, जैसे कि अगर हमें प्रिवेंट करना है, एड्स से बचना है, तो क्या करना होगा, जिससे वो ट्रांसफ़र होता है उन चीज़ों से हमें बचना होगा, रोकना होगा, राइट। जैसे कि हमने कहा था अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, तो गवर्नमेंट का फुल मोटिव है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सेफ रखे जाए, इसीलिए उनको गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स से कॉन्डम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, राइट। कॉन्डोम्स ये रबर शीट है जो बचाता है HIV ट्रांसमिशन से और अदर जो भी डिसऑर्डर्स है इस टाइप के, जो सीमेन से, वजाइनल फ्लूइड से, क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होते हैं, उससे वो बचा सकता है, राइट। और दूसरा उससे प्रेगनेंसी कंट्रोल भी है, तो ये भी हमारा एक मोटिव है हेल्थ केयर में, फैमिली प्लानिंग। तो दोनों मोटिव सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, ओके। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अवेयरनेस जो है वो रिमोट एरियाज़ में बहुत कम है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना होगा, राइट। वही इसके लिए अल्टीमेट सोल्यूशन माना जाएगा। इस पर थोड़ा एक्सपेंस करने की ज़रूरत है। WHO इसमें पार्टिसिपेट करता है, राइट, लेकिन हमें भी एक्चुअली पार्टिसिपेशन का इसमें ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में लैक्स ऑफ पेशेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे पेशेंट सफर्ड है एड्स से, और रेड रिबन ये इसका सिंबल होता है, आप जानते हो, और उनके हम रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, उनके लिए सपोर्ट दिखाते हैं, राइट। रेड इन्वर्टेड रिबन जो आप देखते हो 1 दिसंबर को कैंपेनिंग में आपको इजीली दिख जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है अवेयरनेस, और बचना होगा उन स्पेशली जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स है उससे बचना होगा, राइट। जैसे कि हमने कहा था अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक मेजर रीज़न है, ठीक है। ब्लड शुड बी स्क्रीन बिफोर ट्रांसफ्यूजन, एंड हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल निडल्स और IV बॉटल्स, सिरिंज वगैरह, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। रेजर्स भी यूज एंड थ्रो यूज़ किए जाने चाहिए, ओके। ड्रग एब्यूज़ को रोका जाना चाहिए, क्योंकि एक ही निडल से बहुत सारे पर्सनस ये खुद को इंजेक्ट करते हैं बाय मेडिकेशंस, तो वहाँ पे भी रिस्क बना रहता है। अगर मदर पॉजिटिव है तो उसने प्रेगनेंसी से बच सकती है वो, या फिर एटलीस्ट उसको फीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ये मिल्क से भी ट्रांसफ़र हो सकता है HIV, ओके। यहाँ पर रिस्क बना रहता है। हमें ट्रांसप्लांट नहीं करने चाहिए ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पहले सीमेन को चेक किया जाना चाहिए फॉर HIV, ठीक है। और अवेयरनेस और एडुकेशन ये होता है किसी भी डिसीज़ को रोकने का सबसे फंडामेंटल तरीका, ओके। तो इससे बचने के लिए अवेयरनेस ही अल्टीमेट है, ये हमने अल्टीमेटली कहा है, ओके। तो हम सबको चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेशन करें टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एड्स। तो ये पैंडेमिक डिसीज़ है, वैक्सीन ना होने की वजह से थोड़ा थ्रेट है, लेकिन धीरे धीरे इसमें वैक्सीन्स का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो फिर इसको हम कम्प्लीटली रोक देंगे। बट अभी राइट नाउ इट इज़ अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ओके। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।